Good morning, students. Today we will start chapter 27, Government in States. राज्यों में सरकार कैसे होती है आपने देखा होगा. फेडरल सिस्टम इन इंडिया. Distribution or sharing of power is a crucial feature of democratic system. This makes accommodation of different voices, social groups and minorities possible while preventing the concentration of power in the hands of the few individual groups. Every government in the world has three organs. अब आपने देखा होगा कि इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, यहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है. तो आज हम जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपने देखा कि हर गवर्नमेंट का वर्ल्ड में कितनी भी गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट है तो उसका जो है क्या है, थ्री ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. स्टेट्स इन इंडिया में रिमेन अंडर द सेंट्रल अथॉरिटी, बट यानी ये हमारी सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर है स्टेट्स, बट लेकिन जो है यहाँ पर इंटरनल इंडिपेंडेंटली इंटरनल अफेयर. दिस होल फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी कि स्टेट्स की अपनी इंटरनल अफेयर्स की जो है स्वतंत्रता है. वैसे जो है ये हमारे अंडर द सेंट्रल अथॉरिटी आती है स्टेट, लेकिन दिस शोज फेडरलिज्म इन इंडिया. द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स आर द थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट के कितने लेवल हैं? थ्री लेवल हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अब है स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट में जो है हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. अब आपने देखा कि स्टेट्स के जो हेड होता है वो जो है गवर्नर होता है, और यहाँ पर जो है जो पावर, रियल पावर होती है वो जो है सब जो है चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है, एंड मिनिस्टर काउंसिल एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Each state legislature has legislative assembly. अब जो है legislative assembly और विधानसभा जिसे कहते हैं, या legislative council और विधान परिषद जिसे कहते हैं. The state judiciary is headed by the high court. Executive at the state level. The same pattern of the government exists at the both central and the state level. In the previous here we have learned about the local self governments in the rural and urban areas. Now we will study the state government. Governor is the head of the state. राज्य का मुखिया होता है. He is appointed by the President of India on the advice of Union government. He holds the office of the representative. He holds office as a representative of president. Even though governor is the head of the constitution states that the governor is the head of the state, he is nominal head. Real powers is enjoyed by the chief minister and his council of ministers. Qualification of the governor: governor must be citizen of India, 35 years old age, must not be hold any office of the profit, nor a member of parliament or state legislature, must not be resident of the state of which she is appointed as a governor. यानी कि उस स्टेट का रहने वाला नहीं होना चाहिए जहां पर उसे जो है अपॉइंट किया जाता है. Powers and function of the governor: it is governor who invites the leader of the majority party to form government after state election. He appoints the chief minister, council of ministers and all other high-ranking officials of the states. Vidhan Sabha or the legislature can be dissolved by the governor. Bill passed by the legislature have to be signed by the governor before they become a law or act. President consults the governor to appoint the judges of high court. In case of the governor finds the functioning of state government unconstitutional, he can report it to the president who may even impose the president's rule there. अब आपने देखा कि जितनी भी नियुक्तियां हैं
यानी कि चीफ मिनिस्टर हुआ इलेक्शन के बाद, यानी कि जो है बहुमत जिसका मिलता है पार्टी को, उसका जो लीडर होता है उसे मुख्यमंत्री और जो है उसके मंत्रियों को शब्द दिलाता है। जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिसर होते हैं स्टेट के, उनको जो है नियुक्ति प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कौन करता है? गवर्नर करता है। गवर्नर के साइन के बाद कोई भी बिल पास होता है, जब तक गवर्नर साइन नहीं करता तब तक वो बिल नहीं माना जाता है। तो इनके मतलब कोई भी यदि स्टेट में जो है सरकार जो है गवर्नमेंट सही कार्य नहीं कर रही है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है और वहां पर जो है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। कौन करता है? गवर्नर जो है अप्रूवल लेता है सेंटर से। अब है चीफ मिनिस्टर, ये भी जो है द लीडर ऑफ द पार्टी व्हिच विन द मेजॉरिटी सीट्स इन द स्टेट इलेक्शन। आपने देखा होगा जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं होंगे, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की है। अब पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, he has the following responsibilities. Chief Minister aids and advises the governor. He communicates the governor all decisions on the council of ministers. He has to furnish all the information relating to administration. The chief minister can reconstruct his ministry as and when he likes. He may ask one of his colleagues to resign. It is who control the agenda for the cabinet meetings. It is for the chief minister to accept or reject the proposal for cabinet discussion. The chief minister supervises and coordinates policies of the ministers and departments. All principal policy related announcements are made by him. अब now council of ministers, तो चीफ मिनिस्टर के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो कि चीफ मिनिस्टर के साथ जो है आपने देखा होगा कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं इसमें। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं सीएम कि जो है आपको जो है इस विभाग को जो है डिपार्टमेंट को देखना है, आपको इस डिपार्टमेंट को देखना है। तो इस तरह से जो है ताकि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टू विधानसभा एंड मिनिस्टर्स आर आल्सो इंडिविजुअली रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्शन। द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस फॉर 5 years। और नाउ स्टेट लेजिस्लेचर में आपने देखा होगा कि तो द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स ए लॉ। स्टेट लेजिस्लेचर बिल वन हाउस इज known as unicameral legislature and the house is called legislative assembly और विधानसभा। अब जहां ऑन द अदर हैंड स्टेट लेजिस्लेचर बिल 2 houses called bicameral legislature, each bicameral legislature has second house विधान परिषद। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक all other Indian states have apart from यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक को छोड़ करके लगभग सभी स्टेट्स में जो है यूनिकैमरल क्या है लेजिस्लेचर है। नाउ विधानसभा में आपने देखा होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। और ये जो है इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है। अब हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा शुड नॉट एक्सीड 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट बी लेस देन 60। लेकिन आपने देखा होगा कई ऐसे छोटे राज्य हमारे वहां पर 60 से भी कम जो है मेंबर्स हैं, एमएलए हैं। तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर आपने देखा होगा स्पीकर जो होता है, अब जब इलेक्शन होता है, अभी आपने लेटेस्ट इलेक्शन हुआ बिहार में, तो आपने देखा कि जो है इसके लिए जो स्पीकर के लिए स्पीकर पद का जो है इलेक्शन हुआ, जिसमें जो है एनडीए का जो है नुमाइंदा चुना गया। तो इसमें जो स्पीकर होता है वो जो है विधानसभा को प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसके साथ एक असिस्टेंट जो है असिस्ट करने के लिए यानी कि जो है डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। और इसकी जो ड्यूटी होती है कि जो जितने भी डिबेट्स और प्रोसीडिंग्स होते हैं विधानसभा में वो पीसफुली कराए
It is within the power of the speaker to take action against the member who do not maintain the order. यदि कोई मेंटेन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं. In case of tie after voting on issue, the speaker can cast his or her vote if the speaker is absent. Deputy speaker presents over the house. टर्म विधानसभा का टर्म 5 इयर्स का होता है और उससे पहले भी गवर्नर जब भी चाहे तो उसे डिसॉल्व कर सकता है. In case of an emergency, the term of Vidhan Sabha can be extended by the Parliament. Session, आपने देखा होगा विधानसभा meets at least twice a year, 2 बार सेशन होता है, ठीक है. During each session, at least 1/10 of the members should be present. विधान परिषद अब आपने देखा होगा जब सेशन होता है तो इसका जो इंटरवल होता है दोनों सेशन के बीच में वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो इसलिए लगभग आपने देखा होगा साल में 2 बार जो है हमारे यहाँ पर सेशन चलता है, सदन की कार्रवाई होती है. अब नाउ विधान परिषद. विधान परिषद और लेजिस्लेचर काउंसिल इज द सेकंड हाउस. ये सब स्टेटों में नहीं है, कुछ स्टेट्स में तो इट्स मेंबर्स नोन है. आपको उत्तर प्रदेश में है, इसे एमएलसी कहा जाता है. द विधान परिषद कैन हैव ए मिनिमम 40 मेंबर्स बट द मैक्सिमम नंबर कैन नॉट बी एक्सीड 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द विधानसभा. विधानसभा के 1/3 से ज्यादा जो है सदस्य नहीं होने चाहिए. मिनिमम जो नंबर होता है इसका 40 होता है और ये जो है 6 इयर्स के लिए चुने जाते हैं. और बीइंग ए परमानेंट हाउस, ये एक परमानेंट हाउस है. इसे जो है द विधानसभा परिषद विधान परिषद कैन नेवर बी डिसॉल्व. यानी कि जो विधान परिषद होती है, विधानसभा तो भंग की जा सकती है लेकिन विधान परिषद जो है आपने देखा होगा यदि चीफ मिनिस्टर जो है अपना इस्तीफा दे देता है, त्याग पत्र दे देता है तो क्या होता है, रिजाइन कर देता है तो सारा का सारा जो है गवर्नमेंट जो है डिसमिस मानी जाती है, भंग हो जाती है विधानसभा. तो इसी तरह लेकिन ये जो है विधान परिषद जो है परमानेंट हाउस है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. द मेंबर्स ऑफ द हाउस स्टे फॉर 6 इयर्स एवरी 2 इयर्स. अब जो है इसमें हर जैसे सेंटर में होता है तो इसी तरह जो है एवरी 2 इयर्स 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर. 1/3 जो मेंबर्स होते हैं इसके वो हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं और उनके जो है चुनाव होता रहता है. तो इसलिए ये परमानेंट हाउस है, ये खाली नहीं रहता है. फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर out of many functions of the many functions of the state legislature, the most important is its function of making law on subject included state list. Another important function is to abolish outdated laws. How are laws made? अब आपने देखा होगा laws is the first introduced in the legislature as a bill. How are the laws made? law कैसे बनता है? तो पहले तो लेजिस्लेचर में जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल को, फिर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, वोटेड होते हैं मेंबर, वोटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स आर 2 काइंड्स ऑफ बिल्स. ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर in either of the houses. They are discussed, debated and voted. If the bill is passed Vidhan Sabha, it is sent to the Vidhan Parishad where it is discussed and debated and voted. One of the houses reject or make suggestion, it may lead to the deadlock. Governor in such case may call a joint session. The Vidhan Sabha has the advantage because of its larger strength. Once part the bill is sent for the governor to sign. अब आपने देखा होगा कि मनी बिल, अब जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, वहां पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, उसके बाद वोटिंग होती है और उसे पास कर दिया जाता है. यदि मान लो पास ना होता है तो यानी कि विधानसभा में कोई बिल पास कर दिया और जो है उसे फिर विधान परिषद में भेजा जाता है और विधान परिषद में भी डिस्कस डिबेट और वोटेड होता है. यदि वहां से भी कोई बिल रिजेक्ट कर दिया जाता है, कोई सजेशन दिया जाता है तो उसे जो है डेडलॉक माना जाता है और गवर्नर जो है इस केस में जो है ज्वाइंट सेशन भी बुला लेता है और ज्वाइंट सेशन बुलाने के बाद जो है लगभग जो है विधानसभा का जो कोई एडवांटेज मिलता है क्योंकि विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अधिक होते हैं, तो इसलिए उसे फिर जो है वो वंस पास द बिल इज सेंट फॉर द गवर्नर टू साइन. Money bill are introduced only in the Vidhan Sabha and sent to the Vidhan Parishad. It cannot be held for more than 14 days.
अब जो मनी बिल होता है उसे जो है विधानसभा में ही पास किया जाता है, मतलब जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहां से पास करके जो है विधान परिषद में भेज दिया जाता है। इट कैन नॉट बी हेल्ड फॉर मोर देन 14 डेज, यानी कि वो 14 दिन से अधिक ज्यादा देर नहीं रह सकती है। और रिजेक्टेड बाय द अपर हाउस बट इट कैन मेक रिकमेंडेशन, ना ही उसे वो रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन सिर्फ जो क्या कर सकती है, सिर्फ रिकमेंडेशन यानी कि अपनी कुछ जो है रिकमेंडेशन का दे सकती है कि ऐसा नहीं, ऐसा सुझाव दे सकती है। स्टेट बजट इज ए एग्जांपल ऑफ मनी बिल, इट इज द आउटलाइन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एंड द एलोकेशन। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। In this lesson we have discussed फेडरल सिस्टम इन इंडिया, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जिसमें गवर्नर हेड होता है, फिर चीफ मिनिस्टर, आपने विधान परिषद और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा, फिर स्टेट लेजिस्लेचर, तो विधानसभा, विधान परिषद, फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड हाउ आर द लॉ मेड। नाउ डू रीडिंग एंड ट्राई टू fill your book. Thank you.